Assalamu alaikum. My name is Syed Mohammad Saad bin Shaukat, and today my presentation topic is computer vision and OpenCV. My group member, group leader is Mohammad Sufyan Patel. Basically, this presentation is about our project, Computer Vision and OpenCV. What is a computer vision? In artificial intelligence, AI, computer vision is an area of study that focuses on teaching computers to interpret, understand, and analyze visual data from the world around them. It means we are creating and developing a system and a system of a computer system that take the data from its surrounding and its environment and interprets, analyze, perform calculations and analytical performances on an, analy- analysis on data and come up with an output. Like this is a system in which it includes image processing and video data, and by identifying objects and things around itself in its environment, and it also gets data from human, like taking human images, human gestures, and human expressions. Emotions are one of the most important things to get data and analyze on and make analysis on it. What is the purpose of computer vision? The main purpose of computer vision is to enable computers to interpret and understand visual information in a way similar to how humans do. It is a thing that we are creating a system that will perform things like human do, and this include image and video analysis, object and facial recognition, movement tracking, automatic decision making, human computer interaction. Uh, like I earlier said that it takes images and video from it. It captures images and video from its surrounding environment and make analysis on that. It can take data. It can capture face images and face recognition. It can understand. It is like computer vision is like, yeah, if you have used Google Photos nowadays, there is a thing. There is a thing that it recognizes the faces of the person and provide information regarding them. It is similar to like Facebook tags in images. Applications of computer vision. Computer vision has a wide range of applications in various fields. Here are a few examples of some key applications of computer vision: image and video processing, gaming, surveillance and security, medical imaging, robotics and autonomous systems, automotives, and many more. The main application of computer vision is the main the some main applications of computer vision are healthcare, agriculture, insurance, manufacturing. Like you have seen robots doing and manufacturing in industry, robots manufacturing things in industry, like automobile cars and vehicles, mobile phones, and other gadgets. It is all automated. Humans are not performing, and robots are doing, taking places of human jobs. Benefits of computer vision. Computer vision has several benefits over traditional methods of visual data analysis. Here are a few examples of key benefits of computer vision. कंप्यूटर विजन के जो बेनिफिट्स हैं, हमें एडवांटेजेस हमें मिले हैं, उससे हमें रोड कंडीशन मॉनिटरिंग, हमने रोड कंडीशनिंग मॉनिटरिंग के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, ट्रैफिक का फ्लो देख लिया कि ट्रैफिक को हम किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। हमने इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया। कैंसर डिटेक्शन यूजिंग कंप्यूटर विजन के जरिए हम हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि कैप्चर करके कोई इमेज कैप्चर करके उसको एनालिसिस करना। ब्रेन ट्यूमर है, आप देखेंगे ट्यूमर काफ़ी सारी चीज़ों में ट्यूमर एनालिसिस करना। आपका एक्सरे लेता है कंप्यूटर पूरा, और मॉनिटर है या सिस्टम है पूरा, एक्सरे लेता है, और उसके बाद आपके डिजीजेस बताता है कि इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या आपको बीमारी है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे एनालिसिस ऑफ एक्सरेज, एमआरआई, सिटी स्कैन्स यूजिंग कंप्यूटर विजन। ये सारे हेल्थ केयर के तरफ आ जाता है कि कंप्यूटर विजन हमें हेल्थ केयर की तरफ बेनिफिट दे रहा है। अब ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर विजन की कि ये किस तरह काम करता है। अब इसको हमने एक इमेज प्रोवाइड की। इस इमेज के बारे में ये नहीं जानता था, इसने क्लासिफाई किया, उसके बाद लोकलाइज किया। लोकलाइज कैट को किया तो इसने समझा कि ये कैट की इमेज डिफाइन हो रही है। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, अगर हम एक ही मल्टीपल इमेजेस, ये सिंगल इमेज थी, एक मतलब के
कैट की इमेज थी, अगर हम एक पूरे एक सिनेरियो की इमेज इसको देंगे तो उसमें ये दूसरी चीज़ों को डिटेक्ट करके बताएगा। जैसे इस पिक्चर, आप अगर थर्ड पिक्चर में चेक करें तो ये इसमें आपको एक कैट नजर आएगी, डॉग नजर आएगा और एक डक नजर आएगी, डकलिंग। तो ये सारा एनालाइज करता है और उसके बाद उनको विजुलाइज करता है, एनालाइज विजुलाइज करता है, फिर एनालाइज करता है और फिर उनके जरिए आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, जहाँ इसके साथ जहाँ कंप्यूटर विजन हमें इतने सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे लैक ऑफ स्पेशलिस्ट। कंपनीज में जो कंप्यूटर विजन पे जो लोग काम कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशन ये है कि लैक ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशल बंदे ही इसको समझ सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। कंपनीज जो कि एक बड़ी टीम रख रही हैं, जिनकी बड़ी प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, तो उसमें उनको ऐसे ट्रेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जिनको डीप नॉलेज हो बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ताकि वो कंप्यूटर्स को उसी तरह ट्रेन कर सकें कि वो हमें और एक्यूरेट आंसर्स और रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकें। Need for regular monitoring. If a computer vision system faces a technical glitch or breakdown, this can cause immense loss of companies. Hence, companies need to have dedicated team on board to monitor and evaluate these systems. इसकी एक लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इसको कोई बंदा रेगुलर सुपरवाइज करता रहे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ग्लिच या ब्रेकडाउन आता है तो आपका सारा डेटा और जो आपने पूरी वर्किंग की भी होगी वो लॉस हो जाएगी। इसके लिए कंपनीज को चाहिए कि वो एक टीम ऑन बोर्ड रखें ताकि वो इवेलुएट करती रहे और मॉनिटर करती रहे उन चीज़ों कंप्यूटर विजन को। कंप्यूटर विजन ये पॉसिबल कैसे है? इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। सबसे बेसिक एल्गोरिथम जो इसमें लगता है एआई का, वो न्यूरल नेटवर्क्स है। न्यूरल नेटवर्क्स ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो वाला एल्गोरिथम इसमें अप्लाई होता है। इसके अलावा कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे ओपन सीवी, टेंसरफ्लो, पायटॉर्च एंड कैफे, कुछ ये लाइब्रेरीज हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर विजन को पॉसिबल बनाते हैं। हमारा जो टॉपिक था कंप्यूटर विजन इन एक ओपन सीवी एक कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी है जो कि सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी आजकल है, और ये ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है। इसका काम है कि ये रियल टाइम इमेजेस और विजन को, रियल टाइम इनपुट्स को कैप्चर करे और उसको प्रोसेस करके आपको उसके आउटपुट्स जनरेट करके दे। ये लाइब्रेरी विंडोज पे सपोर्टिंग है, लिनक्स पे सपोर्टिंग है, एंड्रॉयड पे भी है और मैक ओएस पे, और डिफरेंट लैंग्वेजेस पे यूज हो सकती है जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। इसके जो यूज केसेस हैं, 3D एंड 2D फीचर टूल किट्स, ये 3D एंड 2D फीचर्स को एनालाइज करती है, कैप्चर करती है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, इसको 3D इमेज दिखाएं तो ये 3D इमेज के जरिए भी आपको प्रोसेस करके आउटपुट देगी। इसका सबसे बड़ा काम है कि ये फेस रिकग्नाइज करती है, फेशियल रिकग्नाइजेशन एप्लीकेशन। ये फेस रिकग्नाइज करके आपको बता सकती है कि ये पर्टिकुलर आपको मतलब एनालाइज करेगी, आपको एक डिफरेंट तरीके से बताएगी कि ये पर्टिकुलर कौन बंदा। फेस रिकग्नाइजेशन है इसके पास। आपके जेस्चर रिकग्नाइजेशन हैं कि आप किस तरह, आपकी हैंड मूव हो रहे हैं, आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं, और आप कौन से आपके जेस्चर्स हैं, खुश हैं आप, क्या है, ये सारी चीज़ें जेस्चर्स में आ जाती हैं कि नॉन वर्बल्स आपके आगे सारे ये रिकग्नाइज कर सकता है। मोशन अंडरस्टैंडिंग, ये कोई भी चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ चल रही है, कार्स को, वीडियोस में वीडियो गेम्स हैं, चीज़ें हैं, तो ये मोशन मोशन अंडरस्टैंडिंग भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। थैंक यू। इसके आगे सुफियान पटेल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रेजेंटेशन का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में प्रेजेंट करूंगा मैं मोहम्मद सुफियान। जैसे कि पार्ट 1 में साद शौकत ने बताया कि ओपन सीवी क्या है और कंप्यूटर विजन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो अब उसका हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने ओपन सीवी का यूज़ करते हुए कंप्यूटर विजन की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, और उस एप्लीकेशन का एक पार्ट बना है एक तरीके से, जो है वर्चुअल माउस। तो हमारे प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे कि हम एक ऐसा माउस बनाना चाहते हैं जो हमारे हाथ के ज़रिए चले, मतलब हमारी उँगलियों के इशारे पे चले, ना कि किसी माउस के ज़रिए जो हम एक पेरिफेरल डिवाइस यूज़ करते हैं, उसके बजाय हम अपने हाथ के ज़रिए यूज़ करें। हाँ, वो माउस की जो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उसकी बेसिक जो माउस काम आता है, जैसे क्लिकिंग के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए, सेलेक्टिंग के लिए, ये सारी चीज़ें हम अपनी हाथ के ज़रिए कर सकें। तो ये वीडियो है एक जो हमने प्रेजेंटेशन में भी लगाई है, और ये वीडियो प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है। तो ये जो वीडियो है ये हमारी प्रेजेंटेशन के आखिर में प्ले करेंगे हम।
सबसे पहले मैं आपको इसका कोड शो कराना चाहता हूँ। तो ये कोड है, हमारा जो कोड है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है जिसमें हमने सिर्फ हैंड किया है कि जो हमारा हैंड जो है वो कंप्यूटर डिटेक्ट कर सके, तो उसके लिए जो पहला कोड है वो है हैंड ट्रैकिंग का। जिस और इस कोड में हमने हैंड ट्रैक करवाया कंप्यूटर विजन के ज़रिए। तो इस पे काम करने के लिए हम ओपनसीवी के साथ-साथ मीडिया पाइप का यूज़ करते हैं। मीडिया पाइप जो है वो गूगल की एक लाइब्रेरी है जिसने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो रीड करवाई हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान हो जाता है और कंप्यूटर विजन भी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें इम्पोर्ट की हुई हैं, ओपनसीवी, मीडिया पाइप और टाइम। और इसके बाद जो कैप वाला वो है वेरिएबल है, उसके ज़रिए हम वीडियो कैप्चर मतलब कैमरा खुलवा रहे हैं। और इसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स और लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, और इसमें जैसे हैंड्स की लाइब्रेरी है जो हमारे हैंड को डिटेक्ट करने का एक वो है, पहले से प्री बिल्ट लाइब्रेरी है जो ओपनसीवी में पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा हमने प्रीवियस टाइम और करंट टाइम के ज़रिए जो है हमारी जो फ्रेम रेट्स है उसको कैलकुलेट किया है। और जो नीचे आप एफपीएस के वेरिएबल में देख भी सकते हैं, हमने इस तरीके से उसको यूज़ किया है। और हमने मल्टी हैंड लैंडमार्क के ज़रिए जो हाथ के लैंडमार्क्स हैं उनके दरमियान लकीरें खींची हैं, जो प्रोजेक्ट की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये जो है ये कोड है वर्चुअल माउस का। वर्चुअल माउस में जो है हम अपनी 2 उँगलियों के ज़रिए मतलब एक थंब और एक जो पहली उँगली होती है उसके ज़रिए हम माउस पे क्लिक मतलब माउस का जो क्लिक फंक्शन है वो इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि जब दोनों उँगलियों को हम एक साथ पुश करेंगे तो वो क्लिक कर देगा। जो आप इस तो ये हमारे प्रोजेक्ट की छोटी सी वीडियो है जिसमें हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट हमारा काम कैसे कर रहा है। तो इसके 2 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है हैंड ट्रैकिंग और दूसरा है वर्चुअल माउस। तो हैंड ट्रैकिंग में हमने सिर्फ हैंड को ट्रैक किया है कि हाथ को वो ट्रैक कैसे कर रहा है, और दूसरे वर्चुअल माउस में हमने एक माउस बनाया जो हाथ के ज़रिए काम करता है। सबसे पहले ये मॉड्यूल रन करके देखते हैं। तो ये हैंड ट्रैकिंग मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं। इसमें हम जो टारगेट कर रहे हैं वो इस वाली उँगली को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माउस भी हम इसी उँगली से बनाएंगे, इसलिए हमें माउस बनाना है जो इस तरीके से काम कर सके और ये दोनों हाथ को ट्रैक कर रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो लॉग में मुसलसल आगे जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन उसकी आईडी के साथ बार बार चेंज हो रही है। और इसकी 20 आईडीज हैं, जो 21 आईडीज हैं जो हमारे 21 जो पॉइंट्स हैं उनको मिला के बनी है। और अब हम अपने मेन मॉड्यूल पे आ जाते हैं जो है वर्चुअल माउस। इसके लिए हम स्क्रीन को छोटा करेंगे सबसे पहले और ये दराज की वेबसाइट खोल देंगे। अब ये इन 2 उँगलियों पे आप फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 उँगलियाँ हैं, ये वाली 2, ये माउस के हिसाब से काम करेंगी। अब हम इसको स्क्रीन पे लेके जाते हैं। अब इसके ज़रिए हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये। जैसे हमने मेन के बटन पे क्लिक किया तो मेन का मार्ट का बटन सॉरी तो मार्ट का पेज खुल गया है। अब हम इसमें ये बटन सेलेक्ट करेंगे एंड देन हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, पता नहीं कौन सा, और इसको जैसे बाय करेंगे। और लॉगिन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये। थैंक यू सो मच।